welcome to my channel guys. How are you all? We were doing cell cycle and division जिसमें हमने introduction, what is cell cycle, ये components खत्म कर लिए थे. आज हमने start करना है phases of cell cycle. I told you basically about a cell division which is as mitosis. मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में सेल डिवाइड करता है, वो सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हम आज पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली होता कैसे है, में क्या क्या phases involved है, what are the mechanisms that are involved. Okay, so a typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in a culture. मतलब जब भी हम किसी ह्यूमन सेल का सैंपल लेते हैं तो वो एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है. These cells divide once in approximately 24 hours. इन सेल्स का नेचर होता है कि ये 24 घंटे में एक बारी डिवाइड करते ही करते हैं. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism as well as from cell type to cell type. Yeast, like for example, can progress through cell cycle in only about 90 minutes. Yeast जो है हमारा वो cell cycle progress करता है in only about 90 minutes. Cell cycle के दो phases है basically. कौन कौन से दो phases हैं? Interphase ठीक है, एंड दूसरा है माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज मींस एम फेज जिसमें माइटोसिस होती है. ठीक है जी. एम फेज रिप्रेजेंट करता है वो फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस. मतलब इंटरफेज वो फेज है जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा बट बेसिकली तैयारी कर रहा है सेल के डिवाइड करने की. और माइटोसिस तो डेफिनेटली डिवाइडिंग फेज है. It is significant to note that in 24-hour average duration of a cell cycle of a human cell, cell division properly lasts for only in about an hour. Sorry, I repeat again. They are saying in 24 hours, the average duration of cell cycle of a human cell, the cell division properly lasts for only about an hour. एक घंटे के लिए चलती है, 24 घंटे एवरेज ड्यूरेशन सेल साइकिल की. इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल और वो 95% ऑफ द टाइम इंटरफेज रहता है. ठीक है. एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन. जब भी माइटोसिस बिगिन होती है सबसे पहले कौन डिवाइड करता है? सबसे पहले डिवाइड करता है न्यूक्लियस. इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. Karyo word stands for nucleus, kinesis means breakdown and usually ends with the division of cytoplasm, that is cytokinesis. Cytokinesis means cytoplasm, kinesis means cytoplasm ka breakdown. The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and DNA replication. तो इंटरफेज वो टाइम है जिसमें सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करने की तैयारी कर रहा है और एक प्रेपरेटरी फेज है कि अब जब हमें डिवाइड करना है तो ये हिस्सा इस सेल में जाएगा, ये इस सेल में जाएगा. दैट इज हाउ. ठीक है जी. तो इंटरफेज के भी आगे तीन फेजेस हैं जहां पे वो अपने आप को प्रिपेयर करता है. G1 synthesis, that is S phase. G2 that is gap 2. तो ये तीन तरह के फेजेस हैं. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. जो G1 phase है ना वो किसको represent करता है? माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच वाला फेज. मतलब डीएनए के रेप्लिकेट होने से जस्ट पहले और सेल ने डिसाइड कर लिया है कि वो डिवाइड करेगा. ठीक है. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows, but does not replicates in DNA. लेकिन वो अपना DNA replicate नहीं करता G1 में, सिर्फ तैयारी करी जा रही है. ठीक है. S phase और synthesis phase वो phase है जहाँ पे DNA replicate करता है, DNA नया बनता है. ठीक है. उसी की कॉपी दो लेकिन नया बनता है. During this time, the amount of DNA per cell doubles. डबल ही होगा तभी तो वो बराबर बटेगा दोनों में. If the initial amount of DNA is denoted to be DC, मतलब ये हमारा पेरेंट सेल है और इसमें 2C है. ठीक है. देन वो रेप्लिकेशन के टाइम 2C से 4C हो जाता है
ताकि अब आगे जाके जब 2 सेल्स बनेंगे तो उसका 2C इसमें चला जाए, 2C इसमें, ठीक है जी। However, there is no increase in the chromosome number. If the cell has diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosomes remain the same. अब ध्यान से सुनो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, दे आर नथिंग जस्ट द थ्रेड्स ऑफ डीएनए, ऐसे थ्रेड्स होते हैं। ये जो थ्रेड्स हैं ये बने डीएनए के हुए हैं। तो क्या होता है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो G1 वाला फेज है और S फेज है, S फेज में हम ये कह रहे हैं कि डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा, इसी में डीएनए डबल हो गया है, मतलब यही क्रोमोसोम अब डबल डीएनए का बना हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम के 2 हिस्से नहीं बने हैं, ठीक है जी। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S phase, DNA replication begins in the nucleus. अब S phase में DNA replication न्यूक्लियस में स्टार्ट हो रही है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। सेंट्रियोल एक सेल की ऑर्गेनेली है जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, तो उस टाइम वो सेंट्रियोल भी 2 हो जाते हैं, 2 किनारों पे चले जाते हैं सेल के। ड्यूरिंग G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while the cell growth continues. अब ये जो हमारा G2 phase होता है, इसमें प्रोटीन्स बनती हैं, इसमें प्रोटीन्स बनती है कि भाई जब इसका एक्चुअल डिवीजन होएगा ना तो ये सब चीजों ने काम आना है, इसको भी बना लो, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा जो इंटरफेज है ये अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। डन गाइस, इतना मैंने आपको समझा दिया, इतना पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, अगले लेक्चर में आपको इसका कंटिन्यूशन कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, दैट्स ऑल।